Let's get it started. Resume. So for today's topic, we're gonna have to start about for evolution, variation in genetics. So what do we mean by the word variation in genetics? Variation in genes. Okay, what do we mean by the word variation? Variation in genetics, isn't it? Variation and variation. The word variation meant to be used for what? It meant to be used for change. Okay. And what do we mean by the word genetics? Study of genes. There we go. The word genetics meant to be used for what? Study of genes. And now what is genes actually, by the way? क्या होता है genes? It represents character. Basically, it represents what? It represents character. And what do we mean by the word character? Huh? Facial expression. There? Tall, short, surface, just smooth, rough, or the hair color, the eye color. That all sort of things we have to include in what? Include in character. So genes representing character, either the organism would be tall or short, either it would be dark or light, either it having the black eye color, either it having the brown eye color, either it having the green eye color. There are all sort of things representing us, what is representing the character. And how we represent the character, how the genes are being expressing. Gene को आप express कैसे करते हो? By means of alphabet, but there are certain scientists which represent the genes by means of dot and dashes. ठीक है? But the versions we are studying about for genetics, that we are representing it, we are expressing it in the form of alphabets. Okay. We are representing it in the form of alphabets, and we're gonna have to say that these genes are being expressed in a what? In a pair of alleles. In a pair of what? In a pair of. And if I'm talking about four alleles, the pair of alleles would be of two types. Either it would be dominant, either it would be recessive. या तो dominant होंगे या फिर recessive होंगे. If both are dominant, the dominant refer with the capital letter. Dominant को आप किससे indicate करोगे? और recessive को किससे indicate करोगे? Short letter या small letter से. Now, what is dominant and recessive except by representing it in a capital letter or small letter? Dominant और recessive actual definition क्या होगी? जो कैरेक्टर अपीयर हो जाए वो डोमिनेंट है, जो कैरेक्टर अपीयर ना हो वो रेसेसिव है. मतलब रेसेसिव अपीयर ही नहीं होता, बहुत कम होता है. तो ये कितनी मिकदार में बोलो पढ़ा है तुम लोग? 9:2, 3:1 इस मिकदार में होता है. 3:1 की मिकदार में नहीं होता. बोलो, सोचो. Class. One thing, according to the topic that if you had heard, that is called Hardy-Weinberg principle. Have you heard that thing? What is that? Hardy-Weinberg principle? क्या कहलाता है? They represent that the number of dominant allele would be greater as compared to what? As compared to the number of dominant and recessive allele in a population in which the dominant allele is greater than what? Is greater than recessive. जिसमें they just indicate dominant as what? As P and put it in a value of 0.9, isn't it? And they put the value of Q as recessive, and they put the value of recessive as what? As 0.1, and after that they put them into the formula of P plus Q whole square.
ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना जरा सा. It would be what? P square plus 2pq plus q square. So class, if I am all putting it into the certain equation, 2.9 whole square, 2.9, 0.1, plus 0.1 whole square, isn't it? And if we're gonna have to solve it out, so we're gonna get the answer, that is 1. So it tells us that the number of dominant and recessive allele in a population is always be what? Is always being constant. Is always being what? Is always being constant. Constant रहेगी. लेकिन dominant comes in a greater majority in a population as compared to what? ये तो बात क्लियर हो रही है ना कि dominant appears more in society, appears more in population as compared to recessive. ठीक है, तो ये नहीं बोलना कि डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को शो करता है, रेसेसिव अपने कर रहा है. भाई रेसेसिव भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है. ठीक है, इन अ पॉपुलेशन इट शोज लेसर एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू डोमिनेंट. तो डोमिनेंट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल लेटर, एंड इफ बोथ एलील वुड बी डोमिनेंट, सो इट हैपेंड टू बी एज फॉर व्हाट? होमोजाइगस dominant. It referred to be as for what? Referred to be as for homozygous dominant. Yes class, if both alleles will be short, it referred to be as homozygous recessive. And if one allele will be tall and one will be short, so it referred to be as for what? Why you are saying it heterozygous dominant? Why? That all sort of thing which I made over here, that I am representing you over here as what? As genotype. यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या बता दिया? Genotype that tells you the genetical appearance. ये सारी homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive, they all are what? They all are genotype. Genotype means for what? Genetical appearance. जीनोटाइप मीन्स फॉर व्हाट? जेनेटिकल अपीयरेंस. और क्या होता है? एक और टाइप होती है ना जीनोटाइप के अलावा, फिनोटाइप. क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस. रेफर टू बी एज फॉर व्हाट? फिनोटाइप. मार्कर्स में ना इंक रखा करो, कमेंट आ चुका है सर मार्कर्स में इंक डलवा लिया करें. कुछ इसी तरह का कमेंट आया तो थोड़ा सा मार्कर्स में इंक रखवा दिया करो, ठीक है ना. आज मार्कर्स से कल के मार्कर्स काफ़ी लाइट थे, isn't it? आज तुम लेकर आई हो, कल कौन लेकर आया था? कल पहले से रखे हुए थे, कल ये लेकर आई थी. अच्छा ठीक है. खैर, फिनोटाइप रेफर टू बी एज फॉर व्हाट? फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑल दीज थिंग. बताओ, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस, इट वुड बी व्हाट? इफ इट वुड बी, आई एम रेफरिंग इट फॉर दिस, दैट आई मेड फॉर कैपिटल डी, आई मेड फॉर tall, and small d I am referring for short. तो क्या होगा ये? Tall. What about for that? What about for that? What? Short. And what about for this? Why for tall? क्योंकि डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट है तो क्या? डोमिनेंट है तो क्या क्लास? अगर डोमिनेंट ऑलवेज शो इट्स कैरेक्टर. Why dominant? अब तो ये पूछ सकते थे, तो उससे पूछा नहीं तुम लोग. Why dominant always greater in population? Why dominant would always be greater in population? Dominant हमेशा population में greater क्यों होता है? Because it have ability to express its character. Either it is being in the form of pair, or either it is being in the form of single. चाहे ये pair हो या चाहे ये single हो. डोमिनेंट अपना कैरेक्टर कब एक्सप्रेस कर? चाहे वो पेयर में हो या चाहे वो सिंगल हो. द कैरेक्टर वुड बी एक्सप्रेस, दैट इज जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा एलील का वो डोमिनेंट होगा, चाहे सिंगल हो या चाहे ये पेयर में हो. कैरेक्टर एक्सप्रेस डोमिनेंट का. और अगर मैं बात करता हूँ रेसेसिव के हवाले से, सो क्लास दैट इज समवॉट the recessive always show its character in a pair form. तो यहाँ पे recessive अकेला है, यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, यहाँ पे recessive
पेयर में तो शो कर सकता है, ठीक है। तो वन थिंग, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को लिंकअप किया, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को मैं लेके चला कि पॉपुलेशन में डोमिनेंट की तादाद ज़्यादा होगी। क्यों डोमिनेंट की तादाद ज़्यादा होगी? बिकॉज डोमिनेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट इट्स कैरेक्टर आइदर इन द फॉर्म ऑफ और सिंगल, ठीक है। और रेसेसिव अपना कैरेक्टर तभी अपीयर करता है जब वो सिंगल फॉर्म में होता है। तो क्लास फॉर दैट वी हैव द सर्टेन मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन। हमारे पास दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ एग्रीगेशन। पहला हम देखो, पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे तुम लोग को पढ़ाऊंगा जीन पूल के हवाले से, ठीक है ना। जीन पूल क्या होता है तो आइदर इट वुड बी क्लियर। बहुत बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की हैं। कोई इसमें जीनोटाइप हो गया, हमारा फिनोटाइप हो गया, वी हैव द होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। फिनोटाइप क्या? फिजिकल अपीयरेंस। द फिजिकल अपीयरेंस ऑलवेज मैटर। अगर यहाँ पे रेशो देखो तो आइदर द रेशो कम्स ओवर हियर, तो दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, आइदर द जीनोटाइप or phenotype would be same on this above experiment or on this above achieve। क्या इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम है या डिफरेंट है? हाँ, सेम है तो क्यों है, सेम नहीं है तो क्यों नहीं है? ये वाला चैप्टर तो पढ़ा है थ्योरी पे। सेम नहीं क्यों भाई? भाई रेशो, चार चीज़ें हैं, चारों का जो रेशो आएगा, सॉरी मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशो आएगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? तुमने कहा डिफरेंट होगा, क्यों? जैसे कि अगर फिनोटाइप में अगर यहाँ पे पूछता हूँ तो रेशो क्या बनेगा? फिनोटाइप अगर मैं पूछता हूँ तो रेशो क्या बनेगा? 3:2। That is what? That is tall. That is also tall. That is also tall. But that is what? Short. That is what? 3:1. But about for genotype, one homozygous dominant, two heterozygous dominant, and one homozygous recessive. क्या बना रेशो? 1:2 रेशो, isn't it? कोई मसला? So that's all sort of the thing which we are representing, certain expressing to the variation in genetics. I hope कि इसमें genes, alleles, इन सब dominant, recessive, genotype, phenotype, इसको कुछ आइडिया तुम लोगों को दोबारा से रिकॉल हुआ होगा, isn't it? So we're gonna have to cut that part. We're gonna have to start about the next topic, that is gene pool. रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेने की जरूरत तो नहीं इसना। So class, if I'm talking about for a part, we have to start about a part that is called what? जीन पूल, या मैं इसको जीन फ्रीक्वेंसी के टॉपिक पे भी ले सकता हूँ। तो इफ यू कैन टेल मी अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन दे आर बीइंग रिटन फॉर अ वर्ड दैट इज व्हाट जीन पूल। क्या डेफिनेशन लिखी है इन्होंने जीन पूल के हवाले से? The total aggregates of genes in a population at any time is called gene pool. It's called the population's gene pool. It constitutes of all allele at all gene loci in all individual of the population. है मैं यहाँ पे I'm gonna have to cut the story over here short. The number of alleles in a population. इस टॉपिक को मैं लिंक अप करूँ जीन पूल को। चैप्टर नंबर 10 खोलो, जीन फ्रीक्वेंसी, that is ऑफ पेज नंबर। बायोटेक्नोलॉजी आ गया, आपका एवोल्यूशन आ गया, एविडेंस आ गए, इंडेंजर्ड से जीन फ्रीक्वेंसी एंड देयर रोल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो आई गोना हैव टू लिंक दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 233 पे टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी एंड देयर रोल इन एवोल्यूशन। सो आई गोना हैव टू लिंक अप दिस टू थिंग्स, यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैं लिंक अप करूँगा, ठीक है। सो लेट्स गेटिंग स्टार्टेड कि यहाँ पे हम दोनों टॉपिक्स को लिंक अप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ एलील्स कम्स इन अ
रिपीटेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में जीन्स कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, कितने एलील्स मौजूद हैं, तो इन कंडीशंस को हम जीन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ एलील्स इन अ जीन इन अ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जीन पूल. अब वी गोना हैव टू टेक द एग्जांपल दैट वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 500 फ्लावर. मैंने एक पॉपुलेशन ली, कितने 100 फ्लावर्स की क्लास, 500 flowers. I'm gonna have to take the population of what, of 500 flower, out of which 480 I have the red flower. एक बार 480 क्या है class, and 20 of them are white. I'm gonna take the population and out of which for 480 I have for red and 20 of them are okay, और divide करना है. Out of which 320 of them are, and 320 and 160, 320 of them are homozygous dominant, and 160 of them are heterozygous dominant. और 20 तो है ही recessive, ये तो है ही white, ये है क्या, homozygous recessive, isn't it? Tell me that how many alleles would be there. Alleles बताओ, क्या कौन कौन से एलील्स बताओगे तुम लोग? You can have to tell me about dominant allele in percentage and recessive allele in percentage. बताओ, नहीं बता सकते? मुझे यहाँ पे एलील्स की परसेंटेज चाहिए. इस पूरी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील्स की परसेंटेज क्या होगी? 60 होगी, 70 होगी, 80 होगी, 90 होगी, कितनी होगी? जीन पूल नहीं पढ़ा तुम लोग की शक्ल से लग रहा है, जीन पूल तुम लोगों ने नहीं पढ़ा. आओ यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, फिर वहाँ पे तुम लोग को एक और टॉपिक, एक और तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो तुम लोग सॉर्ट आउट करोगे. ये वाला क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट करके दे रहा हूँ तुम लोगों को. ओके, 320 ऑफ देम आर व्हाट, आर डोमिनेंट. 320 डोमिनेंट है. मुझे क्या चाहिए? मुझे एलील्स की परसेंटेज चाहिए. 320 ऑफ देम आर व्हाट, डोमिनेंट. तो इसमें कितने एलील्स मौजूद होंगे? डोमिनेंट एलील्स इसमें कितने मौजूद होंगे? ये तो ऑर्गेनिज्म की तादाद है ना, ये तो जीन्स की ऑर्गेनिज्म की तादाद है. 320 ऑफ देम आर डोमिनेंट रेड. ठीक है, तो इसमें एलील्स कितने होंगे? एक जीन में कितने एलील्स मौजूद होते हैं? पेयर होता है ना, RR. दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर डोमिनेंट. कितने होंगे 320 में? 320 में कितने होंगे? 320 बाय 2, इट वुड बी व्हाट, 640. बात यहाँ बैंड नहीं करेंगे. यहाँ पे बताओ कि कितने एलील्स होंगे? 320 नहीं भाई, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, इजंट इट? ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है. इसके 160 होंगे, ठीक है ना, और इसके 160 होंगे, इजंट इट? Isn't it? मुझे डोमिनेंट किया गया है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है. So what did I make? I made 640 plus 1, कितना हुआ? 0 0 640 1 6 7 7 8. ठीक है, ये क्या है? कितना है? 20 ऑर्गेनिजम्स हैं. रेसिसिव कितना हुआ इनका? 40. RR. ठीक है, तो क्या होगा? 20 by 2. It would be what? 160 plus 40. 0 0 6 plus 4 0 1 1 plus 1. The amount of dominant allele would be 800 and the amount of recessive allele would be, मुझे तो परसेंटेज में चाहिए 80. और कैसे 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 परसेंटेज निकाल ली तुमने? हाँ, that 500 flower consists of how many alleles? अरे 500 flowers में से कितने alleles मौजूद होंगे? हाँ, 500 flower में से कितने alleles मौजूद होंगे? 1000 ना? 1000. The number of total allele would be 1000. What is the percentage formula? Percentage formula क्या होता है? Obtain, divide by total, multiply by 100.
Isn't it? अब अगर मैं डोमिनेंट का निकालता हूँ फॉर डोमिनेंट तो कितना है 800 डिवाइड बाय 1000 बाय 100. Yes, what would be the answer? 80%. And for recessive 200 divided by 1000 multiply by, isn't it? You're gonna have to solve the question, the same question which we have on page number 233. ये तो solve out करोगे, ठीक है? That is the thing which you're gonna have to solve out. अच्छा, तो solve out क्या करना? Solve out करो, बुक बंद करो, आंसर नहीं देखोगे, बुक बंद कर दो. So class, the next question which you're gonna have to solve by your own, books close हो जाए, और that is what? Example, 100 pea plants are there. ठीक है? How many pea plants are there? 100 pea plants are there. Out of which the 70 would be of them are purple and 30 of them would be white. परसेंटेज निकालो जल्दी, पूरा सॉल्व करना. मैंने तो ये बताया नहीं ना, तो क्या लोगे? होम 10 क्लास जल्दी करो, छोटा सा टॉपिक है. %, purple, 30%. Plus, I'm going to put forward another situation over here. If a cow eat all purple, then what is the frequency of white? अब बताओ. Yes, class. What would be the frequency of white? हाँ 30%. मतलब अगर एक गाय आके पूरे पर्पल फ्लावर को खा ले तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी? 30. तुमने कहा 30. व्हाट्स योर आंसर? 30 नहीं होगी, फिर क्या होगी? हाँ भाई, मैंने बोला कि यहाँ पे तुम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल ली. तो मैंने बोला एक और सिचुएशन मैंने पुट अप की उसमें
कि if cow eat all the purple flowers, so what would be the frequency of white? अगर गाय आगे पूरे पर्पल फ्लावर्स को खा लेती है तो फ्रीक्वेंसी वाइट की कितनी हो जाएगी? इसने कहा 30। इसमें क्या सोचना था? इसमें कुछ सोचना था? इसमें कुछ सोचना था? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइट बिकम्स व्हाट? कैसे कैसे भाई पर्पल फ्लावर खत्म हो गए, पर्पल फ्लावर खत्म हो गया, पॉपुलेशन में कौन बचा है? तो व्हाट इज द पॉपुलेशन नाउ? अब कंडीशन दी ना मैंने तुम लोग को, कंडीशन दी कि कंडीशन क्या है? एक गाय आई, पॉपुलेशन, जो चीज़ खत्म हो, जो चीज़ खाली गई वो क्या हो गई पॉपुलेशन से? रिमेन होगी या एलिमिनेट होगी? एलिमिनेट होगी ना। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग को पहले यही दिया जाएगा कि 100 है, और उसके बाद कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देता है। बोलो, एक ऑर्गेनिज्म आता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट, मैं इसको लिंकअप कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 30, 70, 100, 200, 60। तो स्टूडेंट्स बोलेगा भाई 30% थी, अब दूसरा वाला तो एलिमिनेट हो गया, तो दे गिव द सिमिलर आंसर 30। तो यहाँ पे हो क्या रहा था? अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पे, 100 पी प्लांट्स हैं तो व्हाट कुड बी द परसेंटेज ऑफ पर्पल? इट वुड बी 70%। और वाइट कितने होंगे? 30%। फिर एक कंडीशन आई, एक काऊ आई और उसने सारे पर्पल फ्लावर्स को खा लिया, तो पर्पल फ्लावर्स क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए ना पॉपुलेशन में से, बचा कौन सिर्फ? तो वाइट बिकम्स व्हाट? 30% होंगे वाइट? नहीं ना, अब तो वाइट की पूरी मिकदार आपको देखी जाएगी, दैट इज व्हाट? 100%। ठीक है। सो दैट्स सर्टेनली अ क्वेश्चन व्हिच यू हैव ऑन योर बुक। ये आपकी बुक में क्वेश्चन मौजूद था, मैंने आगे का पार्ट इसीलिए क्लोज करवा दिया दैट यू कैन नॉट फॉलो योर बुक। तो दैट इज समवॉट द रीजन, दैट इज समवॉट द थिंग दे कैन मेक अप द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का चैप्टर नंबर 8 में भी है, जो स्टार्टिंग जीन पूल में है, और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को कहाँ मिलेगा? जीन फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। ओपन करना चैप्टर नंबर 8। Okay, so that's somewhat about a part for gene pool, and now what next we have? हाफ ऑफ द पर्पल अगर वो खा लेता है तो आप परसेंटेज बनाओ पर्पल की। अब 100 में से, अब 100% तो नहीं है हमारे पास फ्लावर, अब हमारे पास कितने हैं? 70 का आधा करो, 35 और 30। पॉपुलेशन तो अब इसकी बन गई, पॉपुलेशन अब कितने की है? 65 की है। अब इससे परसेंटेज ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, 35 को डिवाइड कर लो डायरेक्ट 65 से, कितना होगा? ठीक है, तो उसके बाद परसेंटेज आपकी जो भी आएगी दैट व्हाट यू गोना हैव टू राइट अप। ठीक है, कि अगर आधे ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं तो भाई उस ऑर्गेनिज्म जितने टोटल हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। तुमने बोला सर अगर आधे ऑर्गेनिज्म खा लेती है उसके बाद क्या पॉपुलेशन बनेगी? तो पॉपुलेशन को मैंने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट टू द 65। 35 मतलब खा गए, 35 बचे हैं, अब पॉपुलेशन कितने की हो गई? 65। उसके बाद अब तुम लोग निकालोगे डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है ना। अब ये तुम लोगों को पता है दैट इज व्हाट, ये डोमिनेंट आ रहा है और ये रेसेसिव आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इससे आप परसेंटेज आप फॉर्म अप करोगे। ठीक है, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स समवॉट आवर फॉर्मूला, इजंट इट क्लास? अगर वाइट खा ले तो पर्पल 100 हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी एक चीज़ एलिमिनेट कर रही है, अब उसमें फैक्टोरियल काव आ जाए, कोई किसी का कहे कि माली सारे गार्डन में से फूल निकाल लेता है, वॉट एवर द स्टोरी दे गोना मेक, बट यू गोना हैव टू मेक योर कंसेप्ट्स ओवर हियर। Now, the next thing which we're gonna have to make about for over here, Mendel's monohybrid cross, that is law of segregation. अच्छा, ये that all sort of the Mendel's monohybrid cross, जिसमें तुम लोग सारे रेशियो सारे के सारे रेशियो देख सकते हो, that would be nearly about for what 3:1, isn't it? सब में देखो 2.84 equivalent to what 3.14 और 3.15 that is also equivalent to 3. ठीक है ना. So one thing I gonna have to ask you about a part, that why Mendel choose pea plant? Why Mendel choose pea plant for its experimentation? के
जल्दी ग्रोथ होती है, वेरिएशन शो होती है, और हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करता है। हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, अगर वो इंटरमीडिएट आ रहा है तो भी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करता है। एंड हु वाज मेंडल? प्रीस्ट था, बोटेनिस्ट था, जेनेटिस्ट था, कौन था ये? साइंटिस्ट था, व्हाट प्रीस्ट? हाँ, प्रीस्ट था, और they're gonna perform their experiment on the garden of their child. So that's somewhat the story of it. अच्छा, P Pisum sativum होता है, belongs to the family Fabaceae, ठीक है, rich in protein. Now the thing comes over here, law of segregation and law of independent assortment. आओ बात करते हैं इसके हवाले से। तो एक चीज़ जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैं यहाँ पे देखूँ, थस ईच गैम, चलो इसको आप बनाते हैं, फिर तुम लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी से ही इंडिकेट करना है। कल भी मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इंडिकेट करवाया था, इजंट इट क्लास? So now the thing we're gonna have to make it about over here, about a part that is called what? Law of segregation. Now what do we mean by the word segregation? We know that it meant to be a what? Separation. Okay. So class, Mendel just says about a thing that in a crossing over, an exchange of gamete, each gamete receive a single allele, and after that it is being linked together to form what? To form the zygote. So each allele would separate from its pair in order to form the gamete. In order to form the gamete, each allele would be separate from its parent, would be separate from its pair. So that law is called law of segregation. And for that, they're gonna make the experiment. Mendel choose the experiment. He take the two pea plant, one is tall, one is short. He make the crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर जब पहले की उसने, तो what would be the result? So this first capital T links with small d, the first capital D links with, मतलब first capital D links with small d, that is the thing. First capital D links with another T, that is capital D, small d. Capital D links with small, and this capital D again links with small d, isn't it? So what sort of this thing would have to become? क्या बना है यहाँ पे? They all are what? When Mendel's put a situation that he gonna take the two plants, he gonna take the two organisms, one is tall, one is tall, one is. So the first generation comes, they all are what? The first generation comes, they all are what? They all are tall. ठीक है, सारे tall आ गए. Mendel would become excited कि भाई सारे tall कैसे आ गए? मतलब in a population all becomes tall. In a population all becomes tall. That generation would mark up as first filial generation, would also refer to be as F1 generation. Then he take the two F1, उसने फिर क्या लिया? दो F1, इन सबको उसने F1 का, ठीक है? Then he took the two F1, crossing it, and forming what? Forming F2. So let's see it over here. Now what could be the situation? Capital D, capital D, capital D, small d, small d, capital. लेकिन आप you always have to write dominant first. पहले आप dominant रखोगे, and then so what could be the population we can get over here? Phenotype क्या मिला है? Tall, 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 but this one is short. So the ratio comes over here. That is what? 3:1. That would be your what? That would be your F2 generation, isn't it? So that cross occurs between the two organisms having a differentiation of what? Single character. यहाँ पे दो organism को आपने cross किया किस पे? Single character. So that cross is called what? Mono hybrid cross. That cross referred to be as for what? When the two organisms are crossed by means of a single character, that cross is called what? Monohybrid cross. When the two organisms crosses by the two different characters, so that cross would refer to be dihybrid cross. Monohybrid cross समझ में आया? Monohybrid cross. Now let's come on to the part for dihybrid cross.
हाँ हैं कैसे हुआ tall or short, the organism would be differentiated by means of a single character. भाई कैरेक्टर तो हाइट है ना, उस हाइट के अंदर क्या आ रहा है, tall और short. उस हाइट के अंदर क्या आ रहा है, हाँ कैरेक्टर क्या है, हाइट है, हाइट में tall और short. अब स्किन कलर है वो एक सिंगल कैरेक्टर है, वो लाइट भी हो सकती है डार्क भी हो सकती है. आई कलर है वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है. इजंट इट? आप समझ में आया? प्लांट तो सेम होगा ना, स्पीशीज तो सेम होने चाहिए ना. प्लांट इसमें पी प्लांट को हम मैंगो प्लांट से तो क्रॉस नहीं करवा सकते, इजंट इट? नहीं ना. आओ क्लास, द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू गोना हैव टू से अबाउट अ पार्ट दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. हमने पहले देख लिया. देन यू गोना हैव टू मेक अबाउट अ पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, डाइहाइब्रिड क्रॉस. You gotta have to make about for a thing that is called what? That's called the organism. When the two organism cross over by two different character. अब यहाँ पे character क्या हो जाएंगे, दो different character होंगे. तो that character is called dihybrid cross, double trait inheritance, or this could explain you what law of independent assortment. तो इसको double trait inheritance भी कहते हैं. Whatever the things we have, dihybrid cross, double trait inheritance, law of aggregation, law of independent assortment, whatever the thing we have. So class, I'm gonna, without wasting any further time, I'm gonna take the two organism over here. I'm gonna take the tall red flower and I'm gonna cross it with what? With short white. ऐसा नहीं कर देना कि इसको tall ले रहे हो, capital D, tall है तो शॉर्ट को आप इस एस कैरेक्टर दे दो. अल्फाबेट्स आर सेम फॉर द कैरेक्टर. हाइट है, हाइट में टी आप ले रहे हो टॉल के लिए, कैपिटल टी ले रहे हो टॉल के लिए, तो स्मॉल टी लोगे किसके लिए, शॉर्ट के लिए. वहां पे स्मॉल के लिए या शॉर्ट के लिए एस को इंडिकेट नहीं करते. इसी तरह अगर डोमिनेंट में आप रेड के लिए कैपिटल आर ले रहे हो तो वाइट के लिए आप डब्ल्यू नहीं ले लेना, क्या लोगे, small r. That's a basic thing which you have known already. So that is what the tall red, and we're gonna have to cross it with what, short white. तो भाई ये कैसे बनाएंगे सर, हम कैसे बनाएं. अगर organism having a rough green plant है, कोई rough green seed है, तो हम कैसे बनाएंगे. और rough green crosses with a smooth yellow. इस कंडीशन को हम कैसे बनाएं सर. तो भाई डोमिनेंट है, डोमिनेंट से अल्फाबेट सेलेक्ट कर लो. कैपिटल आर कैपिटल जी क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल जी. ठीक है ना. तो अब अल्फाबेट कोई भी चूज कर सकते हो, बट ये आपको होना चाहिए जहन में. मैं डोमिनेंट को फॉलो करते हुए बना लेता हूँ तो मुझे इजी रहता है, ठीक है ना. और यही चीज़ आपकी बुक में भी शो की गई है. तो आई गोना हैव टू से यू टू फॉलो द बुक. ओके. Now, without wasting any further time, that is tall red, that is short white, and what we gonna have to say it over here. First we gonna have to, the generation comes, that is somewhat about for F1 generation. Class, remember that this F1 generation makes you what? F1 generation क्या form करती है? It forming जो पेयर होते हैं उनको क्या मतलब, इसको एक बार लिखूंगा मैं. मीन्स इन F1 जनरेशन आई कैन से दैट इज द जनरेशन ऑफ फॉर्मिंग द गैमेट्स. लिख सकता हूँ, दैट इज द जनरेशन ऑफ फॉर्मिंग द गैमेट्स. एक आ रहा है ना. तो अब सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म था ना जिसमें एक आ गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक टी एक आर, बस फिर टी एक फिर एक आर, फिर कैसे कितने. डायहाइब्रिड क्रॉस इन विच यू गोना हैव टू मेक द 4 पॉसिबल कंडीशंस. कैसे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर, एंड isn't it? यही होगा. कोई मसला. So that is what we have our F1. ये हमारा क्या है. And in order to get F2, what we gonna have to do?
isn't it? Capital D, capital R, capital D, small r, isn't it? And small t, capital R, or small t, isn't it class? We have crossover karo. Capital D, first you gonna have to take the horizontal, उसके बाद vertical. Capital D, capital, isn't it? Capital D. Next what? Capital D, small d, capital R, capital R, capital D, small d, capital R, capital D, capital D, capital R, isn't it? ऐसा तो नहीं होगा small r पहले आएगा, नहीं. वैसे according to the sequence small r आना चाहिए था, but we gonna have to always write the dominant first. Now next what? Capital D, small r. Now next what? Capital D, small d, capital R, small r. Next what? Capital D, small d, small r. Next what? Capital D, small d, capital R, capital R. Now next what? Capital D, small d, capital R, small r, isn't it? यही है. Next what? Small d, capital R, small d, capital R, small r. Next what? Capital D, small d, capital R, small r, capital D, small d, small r, small r. And next small d, capital R, small r. And at last small d, small r, small r. That's all, isn't it? Now class, let's see it over here that if we gonna have to cross the two organisms by means of a single character, we can get the four possible organism, isn't it? कितने possible organism मिलता है? 4. Or अगर organism having been crossed by means of two different character, तो how many characters you gonna get? 16. 1 2 3 4 1 2 3 4 4 for the 16 possible character. ठीक है ना? Out of this 16 possible character, यहाँ पे condition बनाते हैं. This capital D, capital R representing us what? This capital D, small r representing us what? This is small d, capital R representing us what? And this is small d, small r representing us what? Represent क्या कर रहा है ये? नहीं ना, वो तो कर रहा है. मुझे बताओ phenotype ये क्या show कर रहा है? Phenotypically it is what? It is tall, red, isn't it? That is what? Tall, white. That is what? Short, red, and at last we have short white, isn't it? Okay. तो इसमें से भाई कितने tall red हैं, कितने tall white हैं, कितने short red हैं, कितने short white हैं? Yes class. 9 tall red हैं. फिर कैसे बोल दिया? ऐसे बोल दिया. कैसे बोल दिया? चलो आओ मेकअप करते हैं ना इसको. मेकअप करते हैं भाई. देखो tall red को मैं ट्रायंगुलर पैटर्न दे रहा हूँ, इसको मैं स्क्वायर, इसको मैं सर्किल और इसको मैं डॉट. ठीक है. सो कैपिटल डी, कैपिटल आर, आइदर इट कम्स इन अ पेयर, आइदर इट कम्स इन अ सिंगल. दोनों डोमिनेंट है, आइदर एक है या दोनों है हमारे पास. और दैट इज व्हाट? कैपिटल डी, कैपिटल आर. इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है. दिस वन, दिस वन, ओके, दिस वन, this one, this one, this one, this one, this, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Absolutely right. That's what? 9. Now we have tall white. For that we're gonna have to see either the single T, either the pair, or but we require the pair of R, pair of small r. Either this one, this one, this one, no, this one, this one, this one. हो गई? नहीं ना? This one. Now we have short red. For it we require the pair of small d, but either we require a single capital R or a double. This one, isn't it? This one.
बचा एक. So the ratio we get, that is what? 9, 3, 3, 1. 9 plus 3, 12. 12 plus 3, 15. 15 plus 1, 16. तो रेशियो अभी तुम लोगों को पूरा याद नहीं रखना, पूरा मतलब ये मैकेनिज्म तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन तुम लोगों को रेशियो याद रखना है. डायहाइब्रिड क्रॉस का डेट व्हाट इज दैट? 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1. फिनोटाइपिकल रेशियो याद रखोगे, जीनोटाइपिकल याद रखने की जरूरत है ही नहीं हमें, ना तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ना ही डायहाइब्रिड क्रॉस में. डायहाइब्रिड क्रॉस सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास क्या बन रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जो कंडीशन बन रही थी that is what 3 ratio 1. But if I'm talking about for dihybrid cross, we have the ratio that is what 9 3 3 1, isn't it? So class that goes for a certain thing, that is a certain thing which you're gonna have to remember about for what? About for dihybrid cross. अब आगे देखा जाए, that all sort of the stuff would happen over here. और मैं यहाँ पे पेज नंबर 188 में जो सबसे पहला पार्ट है वो पढ़ूंगा यहाँ पे कि the member of one pair of genes segregate independently of the other. Mendel found that अच्छा ये law of independent assortment, member of one pair of factors segregate assort independently of member of another pair, therefore all possible combination of factors can occur in the gamete. तो What did I tell you on a previous lecture? Meiosis में मैंने बताया था क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हर क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है? अरेंज होता है. तो ये सेग्रीगेट होंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंटली अरेंज करेंगे. सो दैट इज समवॉट अ मैकेनिज्म ऑफ व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. आई होप दिस थिंग कुड नॉट ट्रबल यू मोर, इजंट इट? चीज ट्रबल कर रही है, करेगी. आगे देखो क्लास, ये रेशियो, दिस रेशियो कुड बी चेंज. This ratio can be changed into the which topic? Into the topic of epistasis. Into the topic of epistasis. Epistasis क्या होता है कि एक जीन दूसरे जीन पे क्या हो रहा होता है? हावी हो रहा होता है. कैसे हो रहा होता है वो तो हम देखेंगे अभी आगे. लेकिन एपिस्टेसिस को भी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर करूँ तो भाई ये भी दो टाइप के होते हैं. वन इज डोमिनेंट, वन इज रेसेसिव. वन इज डोमिनेंट, वन इज रेसेसिव. और अगर डोमिनेंट के बारे में रेशियो याद रखना, दैट इज व्हाट 12 रेशियो 3 रेशियो 1. और रेसिज्म में रेशियो हमारे पास आता है 9 रेशियो 3 रेशियो 4. तो दैट इज द थिंग विच वी हैव अ सर्टेन थिंग कि कभी भी अगर तुम लोग के पास डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो आता है तो इट विल बी व्हाट 12 रेशियो 3 रेशियो 1. रेसिसिव एपिस्टेसिस आता है तो 9 रेशियो 3 रेशियो 4. याद रहेगा कोई मसला? वो एपिस्टेसिस में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन गेट 12 रेशियो 3 रेशियो 1 एंड हाउ वी कैन गेट 9 रेशियो 3 रेशियो 4 इन रेसिसिव एपिस्टेसिस. तो नेक्स्ट टॉपिक वी गोना हैव टू स्टार्ट अबाउट अ पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेस्ट क्रॉस. आओ करके आओ यहाँ पे देखते हैं टेस्ट क्रॉस को. So class, if I am talking about for next topic, the next topic tell us what? Tell us what? Tell us the next topic tell us what? The next topic tell us about for test cross. Okay, what is that test cross? Test cross, it is a cross to check the purity of heterozygous. It is a cross to check the purity of heterozygous. Cross to check the purity of heterozygous. So class, if we have the heterozygous over here, that is a heterozygous. We're gonna have to link the heterozygous with the pure recessive. And the answer which we gonna have to achieve, that is being constant. हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए. आंसर निकालो इसका.
यही आंसर आ रहा है सबका? रेशो किया सबने? करो करो करो। अरे भाई कितना मुश्किल दे दिया मैंने, जल्दी करो। कैपिटल डी लिंक्स विद स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी लिंक्स विद स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी लिंक्स विद स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी लिंक्स विद स्मॉल डी, isn't it? 2 ratio 2. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 1 ratio 1, isn't it? So that is the thing which is being defined to check the purity of heterozygous. तुम लोग से कहा जा सकता है what is the thing which can define as the purity of heterozygous? Test cross, incomplete dominance, complete dominance, co-dominance, ठीक है? तो that is what? That is test cross, ठीक है? In which we can get the constant, या फिर ये पूछा जाता है a type of a crossing over in which we can get the constant ratio, तो ये भी क्या है? Test cross. हेट्रोजाइगस की प्योरिटी चेक करना, हेट्रोजाइगस को, या फिर आप लोग को ये कहा जाए टू क्रॉस अ प्योर कंपाउंड, टू क्रॉस अ प्योर, प्योर यहाँ पे हम किसको दे रहे हैं? हेट्रोजाइगस को। प्योर हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे? हेट्रोजाइगस को। एज यू कैन सी ओवर हियर, cross phenotypically dominant individual with a homozygous recessive, that is called as, help determine homozygous or heterozygous of the dominant parent. When the dominant homozygous parent is crossed with the recessive, all offspring will be dominant phenotypically, but when it crossed with the heterozygous dominant with the pure with the recessive, then half will be dominant and half will be recessive offspring are produced, ठीक है? तो that is somewhat we gonna check the purity of what? Purity of heterozygous, ठीक है? That all sort of the things which have to be followed over here. Now the next thing which we gonna have to make about a part, that is called what? Incomplete dominance. Incomplete dominance, इससे पहले जो तुम लोग dominance को study कर रहे थे, that is what? That is the complete dominance. इससे पहले जो तुम लोगों ने dominance को study किया कि just for example कंप्लीट डोमिनेंस क्या है और इनकम्प्लीट से पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि कंप्लीट क्या था। कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट पढ़नी है, मुझे प्रोकैरियोट्स पढ़ना है और मैं उससे बता रहा हूँ कि अनडेवलप न्यूक्लियस होता है, तो भाई ये तुम लोग को पता होना चाहिए ना कि डेवलप न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेवलप न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटीरियल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है? तो अगर तुम लोग को कंप्लीट का पता नहीं है और मैं तुम लोग को इनकम्प्लीट बताऊं तो इट वुड बी रॉन्ग फॉर अस, ठीक है? अगर मैं कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में बताता हूं, आई हैव द 2 ऑर्गेनिज्म, वन इज रेड, वन इज व्हाइट। इसका डायरेक्ट F2 क्या आएगा? डायरेक्ट F2 आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? दैट इज व्हाट? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। सो इन दैट वी हैव these 3 are what? Red, and this one is what? White. Ratio becomes what? 3:1, isn't it? Sugar, alhamdulillah. So class, the ratio becomes what? 3:1. Ratio क्या बन रहा है यहाँ पे? 3:1. Over here we can see that this is the heterozygous. ये condition क्या है यहाँ पे? हेट्रोजाइगस है, एंड क्लास दिस हेट्रोजाइगस ओवर हियर shows भाई this shows us what? This shows us dominant, complete dominance कर रहा है ना, means के this single dominant मतलब dominant play its role over here। क्या अगर वो सिंगल भी अपेयर हो रहा है तो कैरेक्टर किसका अपेयर हो रहा है? डोमिनेंट का अपेयर हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है इसके बरक्स? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? We have the 2 organisms same, red crossed with white in case of incomplete dominance. So what happened? The F2 generation comes in a way, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, small r, small r. Over here the things become what? This become red, this become white. But what was that become? क्यों? Because the dominant cannot show its character. Dominant अपने आप को show नहीं कर पा रहा. The character get mixed. The character get what? The character get mixed, and over here a certain different sort of organism comes. That is what? Pink. तो
this could be followed by the ratio that is what 1:2:1, 1:2:1. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और बात आती है, that is what, that is a co-dominance. Co-dominance का मतलब क्या हुआ? नहीं ना, कंप्लीट डोमिनेंस अलग था, मैंने लिखा दिया. इनकम्प्लीट डोमिनेंस अलग था, मैंने लिख दिया यहाँ पे. को डोमिनेंस, व्हाट डू वी मीन? को क्या कंप्लीट को कहते हैं? को क्या कंप्लीट को कहते हैं? को एजुकेशन मीन्स कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम? नो, व्हाट इज दैट? कंबाइन. को मीन्स व्हाट? कंबाइन. तो यहाँ पे एक और फैक्टोरियल्स हमारे पास आ रहा है, कंबाइन. दैट सॉर्ट ऑफ विच वी गोना हैव टू टेक इन एनिमल्स. ये एनिमल्स में ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व होता है. तो फॉर दैट वी गोना हैव टू टेक द रेड काउ एंड वी गोना हैव टू क्रॉस दिस विद द व्हाइट बुल. रेड काउ, हैव यू सीन द रेड काउ? कहाँ होती है? हाँ, तो ब्राउन काउ होती है, उसको हम रेड काउ कहते हैं एक्चुअली. ओके, सो रेड काउ क्रॉसेस विद द व्हाइट बुल. टू क्लास द रेशियो F2 वी गेट कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, एंड स्मॉल r, स्मॉल r. द ऑर्गेनिज्म वी गेट, दैट इज द रेड, दैट इज द रेड ऑर्गेनिज्म, दैट इज द white, but that both are what? Either they are become pink. क्या रोंग क्या होता है? मतलब जिसमें दोनों शेड्स मौजूद होते हैं, जो हमारा होता है नहीं चितकबरा जानवर जिसको कहते हैं, अभी बकरा ईद आ रही है, जिसमें वाइट पैचेस भी होते हैं, ब्राउन पैचेस भी होते हैं, होता है ना पैच, दोनों बहुत अच्छा कलर लगता है. तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रोन कलर. वहां पे कैरेक्टर मिक्स नहीं हो रहा, बट बोथ अपियरिंग, दोनों कैरेक्टर अपियर हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट रोन कलर. कोई मसला? Now next what we have a thing that is what, that is a multiple alleles. Now what is that multiple alleles? यहाँ तक कोई मसला नहीं है. Okay, the thing which we're gonna have to make it over here. What was that? What was that? That is multiple allele. And now, what do we mean by the word multiple allele? Multiple allele क्या होता है? क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? What is that multiple allele actually? The allele will show its multiple effect. Yes, sir. क्यों भाई? A gene for a trait having 3 or more allelic form are called multiple allele. एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें मल्टीपल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही स्पीशीज है हमारे पास, उसमें किसी के पास एक फॉर्म ऑफ एंटीजन मौजूद है, किसी के पास दूसरा फॉर्म ऑफ एंटीजन मौजूद है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीपल एलील. एंड दैट इज बीइंग, वी आर स्टडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप. मल्टीपल एलील्स में हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? वी गोना हैव टू स्टडी अबाउट अ पार्ट दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? दैट इज अ blood group. We are studying it over here into the part that is what? That is a blood group system. Blood group के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर blood group के हवाले से बात की जाए, how many blood group would be defined on the basis of what? On the basis of antigen. What is antigen? Either it is protein in nature, lipid in nature, carbohydrate in nature, nucleic acid in nature. किस nature का होगा ये? So remember that it's a protein in nature. What is it? It is protein in nature. Okay, how many types of antigens are there? 2 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 2. A और B. And how many types of blood group are there? It would be a 4 type. A, B, AB and O. It would be defined according to the RH factor. RH factor अगर अप्लाई होता है तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव. वो किसकी वजह से होता है? RH फैक्टर की वजह से होता है. और RH फैक्टर दैट इज कॉल्ड व्हाट? रीसस मंकी फैक्टर. ये RH पॉजिटिव वुड बी 85% इन आवर पॉपुलेशन और RH नेगेटिव क्या होता है? That would be 15% in population. तो ये भी याद रखना कि पॉजिटिव डोमिनेंट है और नेगेटिव रेसेसिव है. याद रहेगा? हाँ. तो बात की जाए that is what the blood group system and we're gonna have to represent the character of blood group by means of what? अगर मैं blood group A, B, AB और O की बात करता हूँ तो क्लास the blood group A character हम इसको represent करेंगे I से.
capital I. If both character having the antigen A, so that is called homozygous blood group A. That shows you what? Heterozygous blood group A. Similarly for blood group B, that is homozygous. Okay ji. We are on to the part of blood group. I'm gonna have to put forward your condition. Over here that two babies are mixed up in a hospital. दो babies हैं जो hospital में mix हो गए. Babies को identify करना बहुत मुश्किल होता है. तो two babies are mixed up in a hospital, and they having a blood group. उनका blood group है, एक का B है, एक का O है, और दो पेरेंट्स हैं बेबीज के. तो मिस्टर X, मैं किसी का नाम कोड नहीं करा, having blood group A, Mrs. X having blood group AB, और Mr. Y and Mrs. Y having blood group A and A. So class, can you tell me that the baby having blood group B, it would be the baby of Mr. X and Mrs. Y, or the baby of blood group O is the baby of Mr. X or Mr. Y? Yes class. भाई सवाल ये है कि दो बेबीज हैं, हॉस्पिटल में मिक्सअप हो चुका है, उनका ब्लड ग्रुप एक का बी है, एक का ओ है, और दो पेरेंट्स हैं इनके, और एक्स फैमिली जो है उसका एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ए बी है, और वाई फैमिली जो है उनके दोनों ब्लड ग्रुप ए ए है. तो मुझे बताओ कि बी किससे लिंक करेगा और ओ किससे लिंक करेगा? बी एक्स फैमिली से लिंक अप करेगा और वाई ओ फैमिली से लिंक अप करेगा. हाउ यू कैन से दैट? परफॉर्म करो, क्रॉस ओवर करो, ए बी को पहले क्रॉस ओवर करो और ए को क्रॉस ओवर करो. जाओ देखो पहले आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या मेरा क्वेश्चन ही गलत है. तुम लोगों ने ऐसे कैसे समझ लिया कि मेरा क्वेश्चन भी सही हो सकता है? क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता. तो देखो ना, क्रॉस ओवर कर. कैसे क्रॉस ओवर करें? देखो वहाँ पे ए है, बी है, ए बी है, कैरेक्टर्स तो दिए हुए हैं. हाँ कैरेक्टर्स तो दिए हुए हैं ना. हाँ तो हेट्रोजाइगस लें या हेमोजाइगस लें? यही तो क्वेश्चन मुझे चाहिए था कि तुम लोग पूछो कि सर होमोजाइगस लें या फिर कभी भी अगर ब्लड ग्रुप ए या बी दिया होता है, सो यू गोना हैव टू सेलेक्ट ऑन योर लेवल फॉर हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस से अचीव ही नहीं हो सकेगा आपके पास. ठीक है, होमोजाइगस से आपके पास अचीव नहीं हो सकेगा. दैट ऑल वुड बी द बेसिक व्हेन यू गोना हैव टू स्टडी ऑन योर थ्योरी. जल्दी जल्दी करो अब. डन दिखाओ. When you are crossing blood group A with B, ये क्या किया? A ये क्या है? A B है और A मतलब रेसिसिव और ये तो होमोजाइगस है. ये क्या लिखा है तुमने? ब्लड ग्रुप A नहीं ना. ए बी ब्लड ग्रुप कहाँ आ रहा है? ए और ए बी है ना. ए और ए बी है तो ए बी वाला ऊपर लिखा है हेट्रोजाइगस कंडीशन और ए वाला नीचे लिखा है इस साइड पे लिखा है. अच्छा, इन दिस वे यू गोना हैव टू रिप्रेजेंट. इस तरह रिप्रेजेंट करो. इफ यू गोना हैव टू क्रॉस ब्लड ग्रुप ए विद ए बी, ब्लड ग्रुप ए और ए बी को अगर क्रॉस करना है तो remember it, blood group A you're gonna have to cross with AB. So how you gonna have to cross it? So
कैपिटल आई, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया, और ए बी को क्या करोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास आंसर बिल्कुल सही है, यही आ रहा होगा आंसर, इससे रिप्रेजेंट कर दिया करो, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंट करने का टाइम तुम लोगों के पास तो है नहीं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट तुम लोगों को आंसर्स पे आना चाहिए। तो यू गोना हैव टू क्रॉस द फॉलोइंग, ए विद ए बी, तो आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके पास, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए विद ए बी, ब्लड ग्रुप ए हेटेरोजाइगस एंड बी। तो हमारे पास 50% ब्लड ग्रुप ए, 25% ब्लड ग्रुप ए बी एंड 25% ब्लड ग्रुप बी, इजंट इट? यही हो रहा है, यही हो रहा है। ओके, तो इसी तरह तुम लोग को सारे रेशियोज पे आना चाहिए, सारे रेशियोज पे खेलना आना चाहिए। यहाँ पे 2 ब्लड, अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, तो यस द ब्लड ग्रुप बी बिलोंग्स टू व्हाट, द ब्लड ग्रुप, द पेशेंट, द चाइल्ड हैविंग द ब्लड ग्रुप बी, इट बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स। ये तो हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया, हाँ एक हमारा क्रॉसिंग ओवर भी हो गया, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर सबकी तुम लोग को आनी चाहिए, ए विद ए बी और बी विद ए बी करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 50% ब्लड ग्रुप बी, 50% ब्लड ग्रुप बी, जिसमें से एक होमोजाइगस होगा, एक हेटेरोजाइगस होगा, 25% ब्लड ग्रुप ए एंड 25% ब्लड ग्रुप ए बी, इजंट इट? नाउ नेक्स्ट, और क्या है, when you cross the 2 blood group A, so what could be the thing you're gonna have to get it over here, so that is blood group A, that is blood group A, isn't it? Isn't it? Just cross it over class, that is what, blood group A, the 75% we gonna what, we gonna get blood group A and 25% we get what, blood group O. So yes, that is the what, that is the characteristics of Y family. So in this case the Y, the blood group O belongs to what, Mr. and Mrs. Y, isn't it? कोई मसला, कोई मसला। तो अब ये क्रॉस तुम लोग ए का हो गया, बी का क्रॉस करके देखना, ठीक है, ए बी का क्रॉस हो गया, और यू कैन हैव टू क्रॉस दिस वन एज वेल, O with AB, B with O. So this sort of crossing over you're gonna have to get, you know, A with B. That is the cross which you're gonna have to perform by your own in order to get the percentages. In order to get what? In order to get the percentages. ये आपका पूरा टॉपिक किससे डिफाइन हो रहा है क्लास, regarding about a thing that is called what? Multiple alleles. Okay, now the next thing we have about a part that is rhesus factor. तो rhesus factor मैंने आप लोगों को बताया था, टाइम क्या हो रहा है, 1 बजे है। तो rhesus factor मैंने आप लोगों को बताया था, rhesus factor, it is a factor, if this antigen would be present we can say that the blood group would be what, the blood group would be, if it is not present the blood group would be negative, isn't it? अगर मौजूद होगा तो पॉजिटिव, अगर मौजूद नहीं हो तो, अगर मौजूद होगा तो पॉजिटिव, और अगर मौजूद नहीं होगा तो, isn't it? अब देखो क्या आगे कि क्लास वी हैव अ कंडीशन दैट्स कॉल्ड व्हाट, erythroblastosis fetalis. We have a condition that's called what, erythroblastosis. Now what is erythroblastosis fetalis? एरेथ्रो किसका नाम होगा, किसके, फाइटिंग सेल्स हैं, क्या हो गया ऑन दिस स्टेज, ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं भाई, इंटेलिजेंस क्या, एरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, हाँ, आरबीसीज, एरेथ्रोसाइट्स है वो, एरेथ्रो goes for what, erythrocytes that meant to be is for what, RBCs. ल्यूकोसाइट्स होते हैं white blood cells, the fighting cells, ठीक है। ब्लास्टोसिस, ब्लास्ट का मतलब ढूंढ से तबाह हो जाना, फट जाना, नहीं, ब्लास्ट्यूला पढ़ाया तुम लोगों को, मैंने पढ़ाया ब्लास्ट्यूला, मैंने पढ़ाया है, हाँ ना क्लीवेज तो उससे पहले का था, ब्लास्ट्यूला नहीं, सोचो
I'm gonna give you the one word for that. Blast Ventubius for formation. Blast Ventubius for what? Fetalis. That is the condition. Erythroblastosis fetalis. अजान हो रही है. Okay. What would be the condition? We're gonna have to see in erythroblastosis fetalis. यहाँ पे दिख रहे हो? नहीं, नहीं, इसमें दिख रहा है? नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ मैं. Regarding about a part of erythroblastosis fetalis, class, it would be occur when the female is Rh negative and the male is Rh positive. So what happened when pregnancy occur, when the gametes exchange and when the pregnancy occur, and if the first child becomes Rh positive, अगर इनका पहला बच्चा जो होता है अगर वो क्या हो जाए क्लास Rh पॉजिटिव हो जाए तो क्लास फीमेल बॉडी इज व्हाट नेगेटिव, उसके अंदर जो फीटस डेवलप हुआ वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया. तो फीमेल बॉडी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. ठीक है, लेकिन that antibody does not affect the first child. फिर अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हो और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हमारे पास कंडीशन क्या आ जाए RH पॉजिटिव आ जाए. So that antibodies would not have to be start to produce. That antibodies would be prepared into the body. They're gonna do what? They attack the fetus. They kill the RBC and the formation of RBC would be stopped, and that condition is called what? Erythroblastosis fetalis. कोई मसला टॉपिक में आज के? कोई मसला? क्या? भाई सेकंड चाइल्ड के बारे में कहा. फर्स्ट चाइल्ड पॉजिटिव आ रहा है तो फीमेल नेगेटिव है, स्टार्ट करेगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, और इवेंचुअली सेकंड चाइल्ड भी हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो क्या कर देगा अटैक कर देगा. अगर सेकंड चाइल्ड नेगेटिव आता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड नेगेटिव आता है उसको कोई नुकसान नहीं है, दोनों अपकमिंग चाइल्ड नेगेटिव आते हैं कोई नुकसान नहीं है क्योंकि फीमेल बॉडी से मैच कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे तो क्या होगा सेकेंड कंडीशंस में, तो वो क्या होगी कि एंटीबॉडीज उस पर अटैक करेंगे एंड दे गोज फॉर अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड व्हाट? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. कोई मसला आज के लेक्चर के हवाले से? एपिस्टेसिस का टॉपिक इंशाल्लाह हम कल करेंगे. एपिस्टेसिस, डोमिनेंट, रेसेसिव, प्लीयोट्रॉपी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर. इंशाल्लाह वी गोना हैव टू एंड दिस टॉपिक सून.